component of colloidal solutions के बारे में. So actually colloidal solution has two type of component. ठीक है, colloidal solution has two type of component. One is dispersion medium, dispersing medium, and one is dispersed phase. One is dispersed phase, and second is dispersing medium. It is also called dispersion medium. ठीक है, इसको dispersion medium भी कह देते हैं, dispersing medium भी कह देते हैं. Both are correct. Okay, so actually it is DIS है ना, dispersing medium or dispersed phase. And what is dispersed phase? Actually dispersed phase acts as solute in solution, and dispersing medium acts as solvent. Okay, it acts as solvent, and we know that solvent is always in greater quantity. Solvent is in a solution is present in a greater quantity. So dispersion medium will always be present in greater quantity. It will present in a greater quantity, and the dispersed phase, if we talk about the dispersed phase, it will present in less quantity. Okay, इसलिए हमेशा less quantity के अंदर होगा. अब we can name the colloidal solution according to the state of dispersion medium. Dispersion medium के बेस पर भी हम लोग इसको कुछ अलग अलग नेम दे देते हैं. Suppose if dispersion medium, if dispersing medium or dispersion medium is water. So उस केस में जो आपके पास colloidal solution है, the colloidal solution is called colloidal solution will be called aerosol. Water in a hydrosol. It is hydrosol. If you have water as a dispersing medium, then this type of solution is called hydrosol. आप इसको hydrosol कहते हैं. And next is, if dispersing medium is air, अगर आपके पास dispersing medium air है, ठीक है, and you have put some dispersed phase particle in air, तो air में अगर वो present है, then it is called aerosol. इसको आप aerosol कहते हैं. ठीक है. And the next is, if dispersing medium is, अगर आपके पास में dispersing medium and dispersed phase both are liquid, ये और समझना बेटा इसको, कि अगर आपके पास दोनों ही liquid state के अंदर है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं if dispersing medium, तो पूरा लिखते हैं, if dispersing medium and dispersed phase both are liquid, अगर दोनों ही liquid हैं, ठीक है, liquid में liquid का colloidal solution, so in that case it is called emulsion. तो उसे आप क्या कहते हैं? That is called emulsion. उसको emulsion कहते हैं. ठीक है, emulsion में आपके पास dispersed phase and dispersing medium both are in liquid state, दोनों ही आपको liquid state के अंदर देखने को मिलेंगे. ठीक है. One more, इसको रफ कर रहा हूं मैं ऊपर. Okay, and one more example is there, that sometimes we have colloidal solution in form of a gel. Gel में भी हमारे पास में colloidal solution हो सकता है. If we have dispersed phase in form of liquid and dispersion medium या dispersing medium present in form of solid. That means if you have solid in greater quantity,
but liquid in smaller quantity. So such type of colloidal solution, mixture of both the components, such type of colloidal solution is called gel. इसको आप जेल कहते हैं, ठीक है ना. जेल इज आल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, so there are many types of colloidal solution. It may be gel, it may be hydrosol, it may be aerosol. Okay, तो इस तरह से इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं. इट मे बी इमल्शन. ओके, तो इनको थोड़ा एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स को. लेट्स सी. ओके, लेट अस सी different types of colloidal solution and their examples. Different type of colloidal solution with their examples. Okay, चलिए. So let me write dispersed phase first. Dispersed phase first is dispersed phase, and then dispersion medium. Dispersing medium. Okay, and then its type. What type of colloidal solution is it? We combine these two things, and then we will see some examples. ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में. इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सी. यस, इफ वी हैव अ dispersed phase, if we have dispersed phase in liquid state, dispersed phase in liquid state, and dispersion medium is present in a gas state. Okay, so that means gas is present in greater quantity and liquid is present in a smaller quantity. And as we have already discussed, such type of colloidal solution in which dispersion medium is gas, so such type of colloidal solution is called aerosol. Okay, this type of colloidal solution is called aerosol. No beta, air is not a colloidal solution, because in air we know that if we have pure air means we have nitrogen, oxygen and carbon dioxide, such type of gases. The size of the gas particle is smaller than the colloidal particle. जो हमने साइज डिसाइड किया था कि colloidal particle का जो साइज है, it must be between 1 nanometer to 1000 nanometer, but the size of the gas particle is below 1 nanometer. वो 1 nanometer से क्या है, कम है. तो उस केस के अंदर हम लोग प्योर एयर जो है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. ठीक है ना. हाँ, यस, इन दैट केस बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, बिकॉज जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, उनका साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है. तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द कोलाइडल सॉल्यूशन. वो अभी अपन एग्जांपल में ले रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट. ओके, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट. ओके, दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ एरोसोल. ये एरोसोल है, बट इस एरोसोल में तीनों में आप देखें, द गैस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी. इन फॉग गैस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी. ठीक है, एंड लिक्विड इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी. क्लाउड में भी ऐसा होता है, मिस्ट में भी ऐसा होता है. ठीक है, क्लाउड में क्या होता है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इन एयर. ओके, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज कोलाइडल पार्टिकल, and we can see the dispersed phase, and the air acts as dispersion medium. Okay, so that's why fog, cloud and mist, they are example of dispersion, they are example of aerosol. One more thing is that fog और mist की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, we know that dust particles are present in atmosphere. Okay, dust particles are present in atmosphere, and when the temperature is very low, in winter time, so actually what happen, the moisture which is present in air, it is absorbed by the dust particle, and dust, when it absorbs, and because of the low temperature, this water freezes, and because of the freezing of this water which is present on the dust particle, okay, it becomes a colloidal particle. तो वो colloidal particle की तरह बन जाता है, and it is suspended in the air. वो air में suspended रहता है, continuously it perform a Brownian movement, it not settle down.
ओके, एंड दैट्स व्हाई वी सी द ब्लड विजन, ओके, मिल्की विजन, इस तरह से हमें दिखाई देता है उस समय, ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स सी सेकंड वन, डिस्पर्स फेज इफ, हाँ बेटा दिखता नहीं है बट ऐसा वो तो जैसे व्हेन यू सी वेरी फार अवे देन यू विल नॉट बी एबल टू सी, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो हम लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद तो डेफिनेटली है कि वो जितना ज्यादा आप आगे जाते जाएंगे उतना ज्यादा फिर वो विजिबिलिटी कम होती जाएगी, बट एक पर्टिकुलर रेंज तक तो वहां विजिबिलिटी होती है। बिल्कुल लाइट स्कैटर करेगी बेटा, पार्टिकल के बीच में स्पेस तो है ही। पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड जो है एयर के अंदर, वो एकदम टाइटली पैक नहीं है ना, अगर वो टाइटली पैक होंगे जब तो वो सॉलिड ही हो जाएंगे, देन इट विल बिकम सॉलिड, वी नो दैट इट इज नॉट ए सॉलिड, ठीक है। तो वहां पर स्कैटरिंग होती है बिकॉज देर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इट, उसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट वी आर सीइंग dispersed phase is in solid state, okay, and dispersion medium is present in a gaseous state. That means again we have dispersion medium, gas in greater quantity and solid in less quantity, so it is also called aerosol, and we know that when we call it aerosol, when the gas is in greater quantity, it is present in form of dispersion medium, तब हम उसको aerosol कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, actually smoke and automobile exhaust, automobile exhaust means the smoke which is produced by the automobile, okay. So actually we know that in smoke beta there are carbon particles, okay, and these carbon particles are suspended in air। जब भी smoke होती है तो आप देखते हैं उसमें carbon particles होंगे and they are suspended in air and they act as colloidal particle and that's why they not suddenly settle down, एकदम से वो settle down नहीं होते। हम लोग जब देखते हैं जो आग जलती है, why smoke go up, because they are acting as a colloidal particle, वो अभी colloidal particle की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो अभी ग्रेविटी का उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आती है कि वो फिर ऊपर की तरफ ही क्यों जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है, वी नो, ओके, यस, गायब नहीं होता बेटा एक्चुअली, ओके 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 okay, just listen, actually what happen, we know that where we start burning anything, जहां पर भी हम किसी चीज को burn कर रहे हैं, smoke produces there, okay, and there the concentration of smoke is greater, okay, and we know that always gas travel from high concentration to low concentration, okay, गैस कहाँ मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहां आपने गैस को बर्न किया वहां कंसंट्रेशन ग्रेटर है, ठीक है, फिर उसके बाद में वो कहां मूव करेगी जहां कंसंट्रेशन कम है, और धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और वो पूरे में सस्पेंडेड हो जाएगी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द गैस पार्टिकल आफ्टर सम टाइम, उसके बाद हम लोग नहीं देख पाते बिकॉज इट सस्पेंडेड इन द एयर एंड द कंसंट्रेशन बिकम्स वेरी लेस, क्योंकि किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो धीरे धीरे उसका कलर डिसअपियर होगा। ये यू कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने कलर लिया, उसको आपने 1 लीटर वाटर में डिजोल्व किया, फिर उसमें और वाटर मिलाओ, व्हाट हैपन, द कलर ऑफ द वाटर विल बिकम फैड, ठीक है, वो फैड होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट इज नंबर 3, ओके, नंबर 3 इज गैस एंड लिक्विड, गैस इज dispersed phase and liquid is dispersion medium, and we know that this gas is suspended in air, ठीक है। तो ये एक्चुअली इन लिक्विड, गैस इज सस्पेंडेड इन लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में सस्पेंडेड है एंड इट विल बी कॉल्ड फॉर्म, इसे आप क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड फॉर्म, इसको फॉर्म कहा जाएगा। और फॉर्म का एग्जांपल जो है इट इज अ शेविंग क्रीम, you can take an example of foam, okay, foam, shaving cream is an example of foam। actually what happens, we know that when somebody applies shaving cream, जब वो shaving cream apply करते हैं
okay, it is in liquid state, but suddenly मतलब when they start rubbing the shaving cream on face, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे air enter into the liquid, वो एयर जो है वो लिक्विड में क्या होना स्टार्ट कर देती है, लिक्विड में एंटर होना स्टार्ट कर देती है, दे बिकम मैनी बबल्स इनटू द दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसमें बबल्स की फॉर्मेशन होती है, बट वो गैस कम क्वांटिटी में है, द लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऐसे आपने देखा होगा कई बार इस तरह से होता है। सो दैट मीन्स वो दे फॉर्म फोम, है ना, वो फॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं, एंड शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लेट्स कम बैक टू द नंबर 4, नंबर 4 पर आ जाते हैं बेटा। यस, वांट टू आस्क? Beta, actually, yes, okay, listen. Actually, if we talk about the shaving cream, it is neither liquid nor solid. Actually, it is semi-solid. It is intermediate state between solid and liquid. So that's why it is called semi-solid. It is a paste. If there is any semi-solid substance, it is called paste. So it is in form of a paste. Paste की form में होती है, ठीक है? Okay. Next देखते हैं हम लोग आगे. Then liquid and liquid. Liquid and liquid, it means if you are mixing a liquid into another liquid, एक liquid को आप दूसरे liquid के अंदर mix कर रहे हैं, that is called, उसे क्या बोलेंगे, emulsion. Okay, this is called emulsion. So emulsion is a liquid colloidal solution having dispersed medium in liquid form. एंड इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, मिल्क, ओके, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, एंड देयर इज वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज फेस क्रीम. फेस क्रीम is also an example of this. Actually what happen, if we talk about milk, we know that in milk we have water, okay, and in that particular water we have some fat particles. क्योंकि जब आप मिल्क को हीट करते हैं तो आप देखते हैं फैट जो होता है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, फैट जो है वो ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. सो दैट मीन्स दैट फैट इज लिक्विड एंड दैट फैट इज डिजॉल्व्ड इन मिल्क इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है. और ऐसा है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई वो सेटल डाउन भी नहीं होता अपने आप विदाउट हीटिंग, क्योंकि जब आप उसको हीट करेंगे तो फिर कोलाइडल पार्टिकल जो है फैट के वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, and after the collision they will become neutral or we can say discharge and they coagulate with each other, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे and they will form a layer on the water, ठीक है, और वाटर के ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है. so that's why they deposit. yes beta, want to ask anything? the recording as well, मैंने स्टॉप कर दिया था. so actually what I was saying that when you add some lemon और सम सिट्रस सब्सटेंस इनटू मिल्क, और हम लोग कहते हैं कि मिल्क जो है उसके अंदर एक तरह से उसका कोगुलेशन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं दूध फट गया. एक्चुअली फटना क्या होता है, इट इज कोगुलेशन ऑफ मिल्क, ओके, प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क. अब एक्चुअली होता क्या है, वी नो दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द मिल्क, पूरे मिल्क में कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंडेड है. whenever you add some citrus juice और citrus substance such as lemon वगैरह, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो चार्ज होता है बेटा, हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, दैट्स व्हाई दे आर सस्पेंडेड, और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के साथ कोगुलेट नहीं होते. और जैसे ही आप उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे, अगर इवन आप इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देंगे, जैसे आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, तो सॉल्ट ऐड करने पर भी ऐसा ही होगा, हम कहते हैं दूध फट जाएगा. तो वहां पर क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं, कोगुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और इस वजह से एक ग्रेटर मास बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जो चीज या जो भी कहते हैं हम लोग, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है वहां पर, ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स मूव ऑन. और अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद नंबर 5, एंड द नंबर 5 इज सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड. Here we have dispersed phase in solid state and dispersion medium in liquid state. That means the liquid is in greater amount. Liquid is in greater amount and solid is in less amount. तो इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? This is called सोल. This is called सोल. इसे आप सोल कहते हैं, जिसमें सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करके आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. तो ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास? So we have example like mud, which we discussed earlier. Mud is example,
and milk of magnesia, milk of magnesia, milk of magnesia. ठीक है, can anybody tell me what is milk of magnesia? Can anybody tell me what is milk of magnesia? No idea? Actually what happens, have you ever tasted a tablet of Digene syrup, Digene tablet? You have heard and I think you have seen it, देखा होगा आपने। तो Digene का जो टैबलेट होता है एक्चुअली बेटा, या Digene का जो सिरप होता है, उस Digene सिरप में क्या होता है कि we have magnesium hydroxide, we have magnesium hydroxide in water solution। ठीक है, वाटर में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इट इज बेस एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर एसिडिटी। इफ समबडी इज हैविंग एसिडिटी इन स्टमक, सो बेस विल न्यूट्रलाइज इट, क्योंकि ये तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो अब कई बार देखा होगा हमने कि लोग जो होते हैं उनको एसिडिटी होता है। एसिडिटी मीन्स एसिड इज प्रोड्यूसिंग इन देयर बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फीलिंग इरिटेशन इन स्टमक। तो अगर वो लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो उनकी एसिडिटी को रिलैक्स कर देता है। सो हियर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, दे आर सॉलिड पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। ठीक है, सो दी सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन प्रेजेंट इन वाटर दे आर एग्जांपल ऑफ सोल। ओके, वो सोल का एग्जांपल है, उसमें सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड इट इज प्रेजेंट इन वाटर विच इज ए लिक्विड फॉर्म। एंड मड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस सोल। मड में क्या होता है कि जो आपके पास डस्ट पार्टिकल या जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑफ कोलाइडल साइज सपोज, तो वो अगर कोलाइडल साइज के हैं सॉलिड पार्टिकल्स और उसको आपने वाटर में सस्पेंडेड कर रखा है तो वो मड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ध्यान रखना बेटा, मड एंड सॉइल सॉल्यूशन दे आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दोनों अलग होते हैं। ठीक है, मड में क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स, वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे उसमें सैंड वगैरह इस तरह से मिक्स करते हैं या सॉइल के कुछ बड़े डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं उनको ऐड करते हैं तो वो मड नहीं बनाते कई बार। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा रेत डाल देते हैं पानी में तो वो मड नहीं बनाएगा, वी नो दैट बिकॉज देयर साइज इज ग्रेटर। ठीक है, बट अगर हम लोग मिट्टी, थोड़ा सा जो चिकनी मिट्टी होती है जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर देन द सॉइल पार्टिकल्स, तो उससे भी छोटा है, तो वो फिर मड की फॉर्मेशन कर सकता है। या फिर सॉइल को आप ग्राइंड करें, बहुत ग्राइंड करें, इतना ग्राइंड करें कि बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी मड की फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो मड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और मड में पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, है ना, हमेशा उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिक्स्थ। इन सिक्स्थ वी हैव गैस इन सॉलिड, gas in solid. So here we have greater amount of solid and less amount of gas. ठीक है, greater amount of solid and less amount of gas and it is called foam. ठीक है, again it is called foam. तो इसको हम लोग foam कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, foam, रबर, स्पंज। ठीक है, foam हो सकता है इसका एग्जाम्पल, रबर मे बी द एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, एंड स्पंज भी हो सकता है, स्पंज कैन बी एग्जाम्पल ऑफ इट। तो रबर को आपने देखा होगा बेटा, रबर में क्या होता है, वी नो दैट रबर इज अ सॉलिड स्टेट, बट वी नो दैट रबर इज कंप्रेसिबल। रबर कंप्रेसिबल भी तो होता है, रबर कंप्रेसिबल है, दैट मीन्स रबर हैज सम वैकेंट स्पेस, सम एम्प्टी स्पेस इनटू इट, कि रबर में कुछ एम्प्टी स्पेस है। यस, let me clear it first beta, then I will take your question, है ना। So what I am saying that if we talk about the rubber, ठीक है, तो रबर में we know that there are very small pores which are not visible to us clearly, जो हमें दिखते नहीं है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं रबर में, and in that pore air is filled in it। ठीक है, इसमें एयर भरी होगी और when you press it, rubber is compressible because air comes out from it when you press it। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी। ओके, just a minute।